नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में रवाना हुई कोरोना वैक्सीन 16 जनवरी से पूरे देश के साथ ही दार्जिलिंग जिले में भी दी जाएंगी वैक्सीन। 16 जनवरी से पूरे देश के साथ साथ दार्जिलिंग जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कोलकाता से कल रात उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंची। वहीं गुरुवार सुबह से कोरोना वैक्सीन को उत्तर बंगाल के विभिन्न जिले में भेजने का काम शुरू कर दिया गया। आज सुबह कोरोना वैक्सीन को ट्रक से अनलोड कर उन्हें सुरक्षित स्टॉक कर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डीन डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता ने बताया कि उत्तर बंगाल के 5 जिलों में वैक्सीन भेजी गई। आज सुबह उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार व जलपाईगुड़ी जिले के लिए वैक्सीन रवाना किया गया। शनिवार से पूरे देश के साथ साथ दार्जिलिंग जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना वैक्सीन दी जाए। डॉक्टर সন্দীপ সেনগুপ্ত, ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ। আজকে এক ঐতিহাসিক দিন। খুব গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মুকুটে আরেকটা পালকের সংযোজন ঘটলো। কোভিড ভ্যাকসিনের আগমন ঘটলো উত্তরবঙ্গে, এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ আমাদের উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মুকুটের যে কোহিনূর বা প্রাণকেন্দ্র, সেখানে কিন্তু দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার এই 5টা জেলার জন্য ভ্যাকসিন এখানে এসছে। আমাদের যে ওয়াক ইন কুলার সেখানে প্রাথমিকভাবে রাখা হচ্ছে, তারপরে বিভিন্ন জেলার থেকে গাড়ি অলরেডি চলে এসছে, সেখানে তার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলাতে চলে যাবে এবং সেখানে বন্টন ঘটবে বিভিন্ন সেন্টারে। কারণ সরকারি নির্দেশিকা মেনে প্রত্যেক জেলাতে কতগুলো সেন্টার থাকবে সেগুলো জেলা প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ঠিক করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতায়, এবং সেন্ট্রাল এবং স্টেটের গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের 16 তারিখ থেকে ভ্যাকসিনেশন শুরু হবে। আমরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ তৈরি রয়েছি, আমাদের এখানেও সেন্টার রয়েছে, 5টা সেন্টার রয়েছে, এবং এছাড়া দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। বিষয়টা পুরোপুরি দার্জিলিং জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর, আমাদের প্রশাসন সবাই মিলিয়ে দেখছেন, এবং ডক্টর লিউ, ডেপুটি সিএমও3, উনি এখানে রয়েছেন উপস্থিত। আমাদের কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের এইচওডি ডক্টর গৌতম ধর এবং ফ্যাকাল্টি নীলাঞ্জনা ঘোষ চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন সবাই, জগদীশ বিশ্বাস সবাই এখানে রয়েছেন। আর সমস্ত স্তরের স্টাফেদের সাপোর্ট রয়েছে এখানে, যারা ভ্যাকসিনের সঙ্গে কনসার্ন স্টাফ, কমিউনিটি মেডিসিনের, পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, পুলিশের হেল্প রয়েছে। টাইট সিকিউরিটির মধ্যে রাখা হবে এবং এরপরে ভ্যাকসিন বন্টন হবে। সেটা জেলা প্রশাসনের যে কনসার্ন পার্সন এবং কমিউনিটি মেডিসিনের এইচওডি, তারা এই ব্যাপারে আরও বিশদভাবে আলোকপাত করবেন। আমরা চেষ্টা করছি যাতে খুব সুষ্ঠুভাবে, স্বাভাবিকভাবে দিনের পর দিন, এই বেশ কয়েকদিন ধরে এই নিয়ে আমাদের আলোচনা, प्रिपेयर्डनेस এর আগে। पर्यटन मंत्री के पायलट वैन के धक्के से युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के कॉन्वॉय में शामिल पायलट वैन के धक्के से एक युवक घायल हो गया। गुरुवार को सिलीगुड़ी के आशीघर मोड़ इलाके में इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक का नाम हरिमई सूत्रधर है। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को तत्काल सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इधर मंत्री गौतम देव ने कहा कि युवक सड़क पार करने के दौरान अचानक उनके पायलट वैन के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि घटना के फौरन बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने युवक को वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने कहा वे खुद अस्पताल के सुपर से इस बारे में बातचीत की। साथ ही इस बारे में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन को भी सूचित किया गया है। अगर युवक की हालत बिगड़ती है और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता है तो उसे बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराया जा सके। আমি তো কিছু জানি না, যারা নিয়ে আসছে, পুলিশ নিয়ে আসছে, এরা আমাকে ফোন করে, আমি কাজে ছিলাম, বললো তুমি হসপিটালে তাড়াতাড়ি আসো, বেশি কিছু হয়নি, চিন্তার কারণে তুমি আসো, মানে তা বলে না আপনার ছেলে বা কি এগুলো বলেনি। আমি এসে দেখি আমার ছেলে এরকম হয়ে গেছে। বললো গাড়ির সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট লাগে, সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল, আসতেছিল না, সেটা বলেনি, মানে বললো এখন শুনতেছি কোন পাইলটের সঙ্গে যে আহত হয়েছে তার নাম ছেলে আমার গোপাল সূত্রধর। কোথায় যাচ্ছিল ও বললো যে আমি একটা কাজের খোঁজে যাই, তো আশিগড়ের ওদিকটাই মনে যাচ্ছিল। যা বললো যে আমি আসছিলাম তাড়াহুড়া করে,
তো গাড়ির সাথেই লেগে গেছে তাই বল। এখানে তো এসে শুনলাম যে মন্ত্রীর গাড়ির সাথে নাকি পাইলট নাকি, না আমি কিচ্ছু জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম। বাড়িতে হঠাৎ আমার হাজব্যান্ড ফোন করে বললো যে তাড়াতাড়ি আসো হসপিটালে, এরকম ফোন আসছে। তো কার কি হয়েছে ও সেটাও জানে না। जलपाईगुड़ी पहुंची कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य कर्मियों ने ली राहत की सांस। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को कोरोना वैक्सीन जलपाईगुड़ी पहुंची। आज सुबह कोरोना वैक्सीन के जलपाईगुड़ी पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मी इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करने में जुट गए। वैक्सीन पाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुशी जताते हुए कहा, इतने दिनों तक वे सभी आतंक के साये में ड्यूटी कर रहे थे, आज वैक्सीन हाथ में आ जाने से वे लोग काफी खुश है। गौरतलब है कि पूरे देश के साथ साथ 16 जनवरी से उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। আজকে খুব ভালো লাগছে, যেহেতু ভ্যাকসিনটা পেয়ে গেছি এবং আমরা নিয়েও আসছি, আনার পরে খুব ভালো লাগছে। দিন তো খুব আতঙ্কের মধ্যেই ছিলাম, আতঙ্কের মধ্যে ডিউটি করেছি এবং দিনরাত খাচ্ছি আমরা। আজকে একদম খুব ভালো লাগছে। सिलीगुड़ी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 महिलाएं समेत 11 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार देर रात अभियान चलाकर एक फ्लैट में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 महिलाएं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार रात भक्तिनगर थाने की पुलिस के पास खबर आई कि बीएसएफ इलाके में स्थित एक फ्लैट में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस फ्लैट में अभियान चलाकर 4 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार यानी आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी इस फ्लैट में अक्सर आया करते थे। बुधवार रात अभियान चलाकर पुलिस ने इन सभी को धर दबोच लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस बारे में और अधिक जानकारियां जुटा रही है। गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 24 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। माटीगढ़ा थाने की पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के नाम उज्जवल अधिकारी एवं पिंटू सरकार है। वे उत्तर 24 परगना के मध्यम गांव के रहने वाले हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर दोनों को सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा स्थित यीशु आश्रम के सामने से गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को दोनों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से जब्त गांजा का मूल्य करीब 2 लाख रुपए है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। बंगाल में किसानों के घर जाकर कृषक सुरक्षा अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार के कृषि सम्मान निधि को बंगाल सरकार ने रोका, लाखों किसान हो रहे हैं वंचित। ये बातें कही है भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतान बासु ने। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ महीने भर से अधिक समय तक चल रहे आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेता किसानों के घर जाकर कृषक सुरक्षा अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी नेता किसानों के घर घर जाकर उन्हें कृषि कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं। गुरुवार सुबह जलपाईगुड़ी के सदर उत्तर मंडल में झाबाड़ी मोड़ इलाके में इस अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतान बासु अपने समर्थकों के साथ इस अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी, भारतीय किसान मोर्चा के जलपाईगुड़ी के जिला अध्यक्ष नकुल दास समेत विभिन्न नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतान बासु ने बताया कि केंद्र सरकार कृषि सम्मान योजना के जरिए किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के किसान केंद्र की इस योजनाओं से वंचित है। इसलिए किसानों के घर घर जाकर उन्हें इस दायरे में लाने के लिए उनका नाम पंजीकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही किसान परिवार से एक मुट्ठी चावल संग्रह किया जा रहा है। उन्होंने जलपाईगुड़ी जिले के किसानों के साथ संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से भाजपा समर्थकों को किसानों के घर घर जाकर कृषि सुरक्षा अभियान को अंजाम देने की बात कही। इस अभियान के तहत आज जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के अरविंद ग्राम पंचायत के झाबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में सांतान बासु ने कृषि सुरक्षा अभियान के बारे में लोगों के समक्ष अपने विचार रखे। इसके बाद वे समर्थकों के साथ किसानों के घर जाकर उन्हें कृषि सुरक्षा अभियान के बारे में अवगत कराए। এবার দমকল মন্ত্রী টন্ত্রী রেখেছে, তাদের কাজ হচ্ছে তাদেরকে এখন লোকজন সাইরেন মিনিস্টার বলে। তারা দমকলের সাইরেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দমকলটা আছে কি করতে? ভয়ঙ্কর আগুন লেগেছিল কালকে। আমি তো এখানে রয়েছি, যা খবর পেলাম আপনাদের চ্যানেল বাকিদের চ্যানেলে যা দেখলাম, তাদের দমকল আসতে দেরি করেছে, কারণ এই মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে ব্যাপকভাবে।
পশ্চিমবঙ্গের পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে, কোনো প্রশাসন নেই। বহু ক্ষেত্রে বিপর্যয় হয়, এনডিআরএফ না আসলে, এনডিআরএফ যদি না আসে তাহলে সেখানে রেস্কিউর কাজই শুরু হতে পারে না। কালকে আমার মনে হয় এনডিআরএফকে ডাকা উচিত ছিল, একটু আগে ডাকলে মনে হয় ক্ষয়ক্ষতি কম হতো। পরপর আগুন এইভাবে কলকাতায় আমরা কিছুদিন পরপর দেখতে পাচ্ছি বিধ্বংসী আগুন। কিছুটা তো তৃণমূল করছে, কারণ এই মানুষগুলো বাস্তুহারা হবে, তাদের নিয়ে রাজনীতি করতে সুবিধা হবে। কয়েকদিন আগে বেঙ্গল কেমিক্যালের ওখানে হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে এর সঙ্গে রাজনীতি যুক্ত আছে, একটা ষড়যন্ত্র আছে, একটা কনস্পিরেসি আছে, এবং ইচ্ছে করে দেরি করে আসা হচ্ছে যাতে ক্ষয়ক্ষতিটা বাড়ে। রাজ্য সরকার এই ক্ষয়ক্ষতির দায় এড়াতে পারেন না। আমাদের সরকার হলে এই প্রত্যেকটা ঘটনার আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করব। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार पहुंची कोरोना वैक्सीन, पहले लॉट में आई 12,500 वैक्सीन। 4 सेंटर से सुबह 9 बजे दी जाएंगी वैक्सीन। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार दोपहर को कोरोना वैक्सीन अलीपुरद्वार जिले के मुख्य स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंची। जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी व जिला शासक की मौजूदगी में इसे जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दफ्तर के शोरूम में रखी गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश चंद्र बेरा ने बताया कि पहली खेप में आज 12,500 कोविड वैक्सीन अलीपुरद्वार पहुंची। इनमें 160 वैक्सीन हासीमारा वायुसेना छावनी भेजी जाएगी और शेष बची स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को देश भर के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले के 4 सेंटर से कोरोना वैक्सीन दी जाएंगी। इनमें अलीपुरद्वार जिला अस्पताल, कामाख्यागुड़ी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फालाकट्टा ग्रामीण अस्पताल एवं यशोडंगा ब्लॉक प्राथमिक अस्पताल शामिल है। सुबह 9 बजे से कोरोना वैक्सीन देनी शुरू होगी। उन्होंने बताया आज जिले में कोविड-19 पहुंचने से पहले जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीणा और वे खुद जिला मुख्य स्वास्थ्य कार्यालय पहुंच गए थे। अलीपुरद्वार জেলাতে 12,500 ডোজ কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন
যেটা কোভিড-19 জন্য যেটা প্রতিষেধক টিকা সেটা এসেছে। আমরা আগামী পরশু 16 তারিখে যেটা রাজ্য স্তরে যেটা উদ্বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করবেন, সেইটা আমরা এখানে জেলাতে 4টি সেশন সাইট করেছি। একটা জেলা হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল, একটা যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতাল, একটা ফালাকাটা গ্রামীণ হাসপাতাল আর একটা কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। এই জায়গাগুলোতে 100 জন করে বেনিফিশিয়ারিকে টিকা দেওয়া হবে। বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে 100 জন সিলেক্ট করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মিক্সড বেনিফিশিয়ারি, অর্থাৎ মানে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যেহেতু আমরা নিচ্ছি, তাদের মধ্যে সব রকমের স্বাস্থ্যকর্মী থাকছেন, যেমন চিকিৎসকও থাকবেন, সাফাই কর্মীও থাকবেন, আবার রোগী কল্যাণ সমিতি মেম্বার বা চেয়ারম্যান তারাও থাকবেন। তো এইভাবে আমরা আগামী 16 তারিখে এইটা প্রোগ্রামটা প্রথম লঞ্চিং হচ্ছে। তারপরে আগামী দিনে বাকি যারা আছেন তাদের সকলকে টিকার আওতায় আনা হবে। প্রথমত হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, তারপরে আদার যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আছেন তারা আসবেন এবং অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তরের কর্মীরা, আধিকারিকরা তারাও আসবেন। कूच बिहार भी पहुंच गई कोरोना वैक्सीन। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के साथ ही गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कूच बिहार जिले में भी कोरोना वैक्सीन पहुंची। कूच बिहार जिला कोविड के नोडल ऑफिसर दिलीप दे ने बताया कि पहली खेमे में आज यहां 18,500 डोज कोरोना वैक्सीन पहुंची। कूच बिहार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के भवन में एसी कमरे में 3 बक्से में इसे पूरी सुरक्षा के साथ स्टोर किया गया है। जिला मुख्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के 9 केंद्रों के जरिए 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन সেটা হচ্ছে আমাদের ডোজ এসছে 18,500। আমরা কাল থেকে অলরেডি ডিস্ট্রিবিউট শুরু করে দিচ্ছি সব জায়গায়, আর আমাদের 16 তারিখ থেকে ভ্যাকসিনেশন শুরু হবে। কোচবিহারে কতগুলো সেন্টার করা হয়েছে? আপাতত আমাদের এই ফেজটাতে 9টা জায়গায় করা হয়েছে, 5টা পিপি ইউনিট সমস্ত এসডি হসপিটালগুলো, আর এছাড়া নাটাবাড়ি, তারপরে হচ্ছে গোসানিমারি, তারপরে হচ্ছে আপনার সিতাই, শীতলকুচি, এগুলো জায়গায় করা হয়েছে। এগুলো ভ্যাকসিন চলে যাবে, আর প্রতিটি জায়গায় ইনাগুরেশনের সময় একজন নোডাল অফিসার ফিট করা হয়েছে, ওইখানটায় যাবে, সবাই মিলেই এটা থাকবে। 10টা 5টা টাইম লেখা আছে, সেই অনুযায়ী হবে। আমাদের বেনিফিশিয়ারি আছে প্রায় 16,000 সামথিং। হ্যাঁ, 16,000 প্লাস। আমাদের একটা সেশনে 100 করে আমাদের বেনিফিशियरी बोला আছে। 50 लोगों को दिया गया जमीन का पट्टा, 200 को मिले स्वस्थ साथी कार्ड। कालचिनी पंचायत समिति की ओर से गुरुवार को 50 लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किया गया। आज सांताली ग्राम पंचायत इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में सांताली ग्राम पंचायत इलाके के 50 लोगों के हाथों में जमीन का पट्टा प्रदान किया गया। इस अवसर पर कालचिनी पंचायत समिति के अध्यक्ष अरुणा परिहार, सांताली ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज बेरुआ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांताली ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज बारुआ ने कहा कि आज सांताली मंडलपाड़ा पूर्व सांताली इलाके के 50 लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किया गया। इसके साथ इलाके के करीब 200 लोगों को स्वस्थ साथी कार्ड भी प्रदान किया गया। মোটামুটি 50-এর উপরে। কোন এলাকার লোকদের? সব আমাদের সাঁতালি মণ্ডলপাড়া, পূর্ব সাঁতালি বস্তি এলাকায় যে আছে, তার পাশাপাশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে যে স্বাস্থ্যসাথীর কাজ চলছে, আজকে তাদের যারা দুয়ারে সরকারে অ্যাপ্লাই করেছিল তাদের আজকে হাতে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড তুলে ধরে দেওয়া হয়েছে। থেকে চলছিল, পাট্টাটা আগের থেকে চলছিল, এবং দুয়ারে সরকারে ওটা পাট্টা পাওয়ার পরে এখন আরও কিছু আছে যে যারা পাট্টার মাধ্যমে 12 लाख रुपयों की गांजा के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। कूच बिहार से असम की जा रही थी तस्करी। कूच बिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर गांजा के साथ पिता पुत्र को हिरासत में लिया। उनके पास से 94 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब्त गांजे की तस्करी कूच बिहार से असम की जा रही थी। गुप्त गांजे का बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। कूच बिहार कोतवाली थाने के एसपी लालटू हलदार ने गुरुवार को पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया तस्करों के नाम कमलाकांत बर्मन एवं उसके पिता संजीत बर्मन है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांजे की तस्करी किए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस अभियान चलाकर दोनों को धर दबोच लिया। उन्होंने बताया कि गांजा मोटरसाइकिल से तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।
যেটা কারণে একদম তদন্তের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। আজকে আমরা কোর্টে তুলে তাদেরকে রিমান্ডে নেওয়ার পরে আমরা কী আছে ডিটেল জানব। কোচবিহার আসাম যে একটা আপনারা নিজেরাও জানেন, লোকাল আপনারা আছেন, তো বিভিন্ন নদীর চরে প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে মানুষ যদি না অ্যাওয়ার হয়, আমরা অ্যাওয়ার করার জন্য বারবার আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছি। তো মানুষ নিজেই বাড়িতে একদম সাধারণ চাষবাসের মতো করে নদীর চরে কেউ নিজের বাড়ির মধ্যে গাছ চাষ করছে। আপনারা নিজেরাও দেখছেন প্রতি বছরই আমরা, এবছরও আমরা অলরেডি গাঁজা গাছ কাটা মানে ব্যাপক হারে আমরা গাঁজা গাছ অলরেডি আমরা প্রশাসনের উদ্যোগ নিয়ে আমরা কাটছি। আজকেরও এই প্রোগ্রাম আছে, আইসি কোতোয়ালি নিজে উদ্যোগ নিয়ে গাঁজা গাছ কাটার অভিযানই অলরেডি কাজ চলছে। তো এই ব্যবস্থাটা আমরা অবশ্যই করছি, কিন্তু পুরোটাই তো পুলিশ প্রশাসনের উপর নির্ভর করে না। কোনো কিছু ক্রাইম পুরোটাই বন্ধ হওয়াটা শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করে না, সাধারণ মানুষকেও এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে এবং তাদেরকে সচেতন হয়ে এই জিনিসটাকে এগিয়ে আসতে হবে। अलीपुरद्वार के बिरपड़ा चाय बागान क्षेत्र के दलमोड़ चाय बागान में एक 1.5 साल के तेंदुए को नाले से उद्धार किया गया। जानकारी के अनुसार उक्त तेंदुए के दाहिनी आंख में चोट लगी है और पीठ पर भी हल्के जख्म के निशान है। हालांकि तेंदुए के घायल होने की जानकारी वन विभाग के पास नहीं है। घायल तेंदुए को बुधवार देर रात बचाया गया और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के सहायक वन्य जीव संरक्षण के कार्यालय में ले जाया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तेंदुए की आंख। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।